Students, so we meet again with our next lecture. I hope you all are safe at your homes and you are following all the lectures. So if anybody has any doubt or you are unable to understand any part of the lecture, you can just mention the timing of the particular lecture and comment in the comment section below, so that I understand and I come to know that you people are understanding, and those who are not understanding, I'll reply as I see the comments. Okay, all right. So in the last lecture we began with the part 2 of the second chapter, Lost Spring, and we were talking about story of Mukesh, a boy who wanted to be his own master, but at present he was not his own master. Why? Because he was under his family pressure, under his family tradition, and he had to work in a glass furnace, in a glass industry in Firozabad, which was famous for what? Bangle making. Alright, and we also understood that there were 20,000 children who were working illegally, and if they would have known कि ऐसा कोई लॉ है तो वो लोग अभी तक वहां से निकाले जा चुके होते. Alright, okay. And why the author is saying it is illegal? Because वो बच्चे हैं, and because they are children, their age, the age which they are living in, their age is to enjoy and to explore things, to experience all sort of things. But what are they doing instead? They are in those rooms which don't even have any windows, there is no air, there is no light, and they are losing their eyesight also, which is very dangerous, which is going to be very bad and very disturbing for them. Alright, so please turn to page number 17 and you can just see the mid of the second paragraph. Alright, from there I'll begin. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down. Okay, so what is happening here? Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home. मुकेश आईज बीम, मुकेश का जो आंख है वो टिमटिमा जाता है, वो खुशी से एकदम. बीम मीन्स, बीम मतलब रे, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं ना, BEAM, बीम ऑफ लाइट, दैट इज रे ऑफ लाइट. रे मतलब रोशनी का एक किरण. तो आईज बीम मतलब आईज चमक उठना, आईज रोशनी की तरह टिमटिमाना, चमक उठना. एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. वॉलंटियर करना मतलब हम बोलते हैं क्लास में कितना लोग वॉलंटियर बनना चाहता है, तो वॉलंटियर तुम खुद से राजी होते हो, तो वॉलंटियर करना मतलब खुद से वो चीज के लिए एग्री करना, खुद से एग्री करना. ऑलराइट, पर यहाँ पर बहुत लोग, तुम लोग बदमाशी करते हो तो टीचर जबरदस्ती वॉलंटियर बनाती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट वॉलंटियर का मतलब होता है जो खुद से रेडिली अपने से फॉरवर्ड आया है और वो काम करना चाह रहा है. तो यहाँ पर मुकेश अपने से आता है और वो कहता है अनीस जंग को, ऑथर को, कि चलिए हम आपको अपने घर ले जाते हैं. नाउ आफ्टर दैट आई विल बी रीडिंग दैट देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस वेयर ही लिव्स एंड देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज हाउस. सो जस्ट लेट मी रीड एंड देन आई विल एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन. ऑलराइट, ओके. सो ही हैज ऑलरेडी टोल्ड दैट इट इज गोइंग टू बी रीबिल्ड. वो फिर से बन रहा है घर उसका. We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels, with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood. All right, okay. So just mark with a paragraph there. I'm just telling you from the point we walk down the stinking lanes. You can see in the text. We walk down the stinking lanes. Just open a bracket there and close the bracket. Close the bracket. Yes, to that line. With families of humans and animals coexisting in a primeval state. वहां तक तुम ब्रैकेट क्लोज करो. एंड देन ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस. वहां से एक दूसरा ब्रैकेट खोलो एंड वो अभी बंद मत करना. आई लेट यू नो वो बंद कब करना है. क्यों हम ये दो ब्रैकेट मार्क कराए? दोज हु डिड नॉट अंडरस्टैंड, जस्ट पॉज द वीडियो, सर्च फॉर द लाइन्स एंड देन अगेन कम बैक. Because this is the benefit of online video lectures, that you can pause anytime you want and I'll stop and then you can play me again. All right. So यहाँ पर क्या लिखा हुआ है?
We walked down the stinking lanes choked with garbage, past homes with remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals living together. So what is he trying? ये जो description है, पहला bracket जो हम mark करवाए हैं, पहला bracket open and close करवाए, this is a description of the area where he lives in. Okay, and the second bracket जो हम mark करवाए, that is his house, the description of his house. So first we'll see वो किस जगह पे रहता था. He was living in a place जहाँ stinking lanes था. Stink करना मतलब बदबू. Okay, foul smell. खराब स्मेल जो आता है उसको स्टिंक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत खराब स्मेल कर रहा है या कहीं पर बहुत खराब स्मेल आ रहा है, सो यू कैन जस्ट से, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज स्मेलिंग बैड, यू कैन जस्ट से इट इज स्टिंकिंग. STINK इज द वर्ड, एंड अगर वो वर्ब फॉर्म में कर रहे हो तो स्टिंकिंग. तो स्टिंकिंग लेन्स था. लेन चौराहा. चौराहा नॉट एग्जैक्टली रास्ता जिसको बोलते हैं, वो लेन्स होता है. ओके, जो रास्ता जो गली जाता है उसको लेन्स बोलते हैं. तो बहुत बदबूदार गली हुआ करता था. चोक्ड विद गार्बेज मतलब यू कैन इमेजिन, इन इंडिया इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन दीज सिचुएशंस एंड दीज डिस्क्रिप्शन, क्योंकि तुमको हर इधर उधर एरिया में दिख जाएगा. अंटिल अनलेस वो बहुत रिच सोसाइटी नहीं हो, तुमको दिख जाएगा कि गली में कचरा फेंका हुआ है, डंप किया हुआ है गार्बेज. एंड चोक्ड विद गार्बेज का क्या है? जस्ट लुक एट द एक्सप्रेशंस विच आर बीइंग यूज्ड. इट्स सो ब्यूटिफुल. ऐसा लग रहा है कि गली जो है वो पूरा गली का दम घुट रहा है उस गार्बेज के वजह से, क्योंकि वहां पर इतना बदबू है, वो पूरा जगह खराब कर दिया है. इट्स लुकिंग एज इफ वो लेन, वो रास्ता का दम घुट रहा है. ऑलराइट. पास्ट होम्स दैट रिमेन हाउल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स. तो पास्ट होम्स वो लोग क्रॉस करते हैं, पास जाते हैं बाकी घर से, और वहां पर तुमको घर दिख रहा है, हॉवेल्स, झोपड़ी काइंड ऑफ घर दिख रहा है, जो जिसका वॉल्स पूरा क्रम्बल कर रहा है. क्रम्बल एज इन, अगर तुम लोग अभी क्लासरूम में होते तो तुम लोग को अच्छे समझ में आता, जब वॉल्स का जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है या जो पेंट होता है वो उखड़ के गिरता है ना, उसको बोलते हैं क्रम्बलिंग. कोई भी चीज जो तुम ऐसे पकड़ो, बिस्किट लो एंड यू जस्ट डू लाइक दिस, वो क्रम्बल होके टूट जाता है, वो होता है क्रम्बल. जो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नाजुक होता है, एंड यू जस्ट ब्रेक इट. तो क्रम्बलिंग वॉल्स एज इन दीवार से जो पूरा वो पेंट है वो उखड़ रहा है. Wobbly doors. Wobbly, for example, have you seen jelly? How is it? When you keep it in your hand and you just do like this, it shakes. But it shakes without falling. वो अपने पूरे बॉडी के साथ शेक करता है, but then वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसका शेप वैसे ही रहता है. तो यू इमेजिन देयर इज एन आयरन डोर, लोहा का दरवाजा है, या ऐसा कोई दरवाजा है, कांच को तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, लोहा का है, तुम उसको एक लात मारते हो या यू बैंग ऑन इट और वो ऐसे ऐसे हिल के इट ओपन्स. यू कैन ऑल इमेजिन. इंडिया, अगेन आई सेड, इंडिया में ये सब समझाना दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ डेली रूटीन काइंड ऑफ थिंग यू कैन सी इन एवरी अदर हाउस. ऑलराइट. सो नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं था. वॉबली डोर्स था, दीवार उखड़ रहा था, सारा पेंट उखड़ रहा था. And there it was crowded with families of humans and animals. मतलब animals भी थे और humans भी थे, and they were coexisting in primeval state. Primeval या primeval का मतलब पुराने जमाने के जैसा, जब शुरुआत में स्टोन एज में जानवर और आदमी एक साथ रहता था, वैसे ही ये लोग आज जी रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुत्ता बिल्ली को दौड़ा रहा है, इंसान कुत्ते को दौड़ा रहा है, कुत्ते इंसान को दौड़ा रहे हैं. इट्स जस्ट हैपनिंग दैट काइंड ऑफ थिंग. आई नो इट्स वेरी फनी, बट इमेजिन दे आर लिविंग टुगेदर, दे आर हैविंग फन, देयर आर एनिमल्स सिटिंग देयर, कैट्स, डॉग्स, काउज, एंड हियर ह्यूमंस आर आल्सो देयर, एंड they are just living together. So you can just picture what is happening. Okay, so here till here it was, I close the bracket here, so till here it was a description of the place where he lives in. अब आता है उसका घर. उसका घर कैसा था? He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. तो प्लीज ये सब चीज तुम लोग क्लासरूम में मत ट्राई करना, कि तुम लोग आओगे और एक लात मारोगे और तुम लोगों को लग रहा हो अंदर टीचर नहीं है, एंड देन द डोर जस्ट शेक्स लाइक दिस एंड इट ओपन्स एंड इन फ्रंट यू सी योर टीचर. ओके, वैसा मत करना.
सो यू कैन इमेजिन, बहुत लोग ऐसे स्मार्ट बने होंगे कॉलेज में भी या घर में, यू जस्ट बैंग ऑन द डोर, यू जस्ट पुशेस द डोर एंड वो दरवाजा बिल्कुल शेक करते हुए, जेल की तरह जो वॉबल करते हुए खुलता है. सिमिलरली द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक. हाफ बिल्ट शैक मतलब आधा अधूरा घर बना हुआ है. एंड वी कौन है यहाँ पर? अनीस जंग रीडर्स को बता रही है, विच मीन्स वी यहाँ पर शी इज द वन एज वेल एज मुकेश. तो दोनों कोई एक साथ मुकेश के घर एंटर करता है. इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. तो ये अनीस जंग हम लोग को बता रही कि एक पार्ट में thatched with dead grass. thatched मतलब बोल सकते हो जब जो डेड ग्रास पुआल जो वहां पर पड़ा हुआ है एक साथ एक बंडल में, इज अ फायरवुड स्टोव. एक जगह पूरा पुआल या डेड ग्रास पड़ा हुआ है, दैट इज डेड ग्रास. एंड हे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पुआल को इंग्लिश में हे बोलते हैं, और डेड ग्रास. एंड ऑन द अदर हैंड वहां पर एक फायर स्टोव है, वहीं पर एक फायरवुड स्टोव है, लकड़ी है और स्टोव है, जहां पर एक बड़ा सा बर्तन, एक वेसल इज सिटिंग, जिसके अंदर पालक की सब्जी स्पिनिच लीव्स डाला हुआ है. ऑलराइट. ऑन द ग्राउंड इज अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स. तो जमीन पे एल्यूमिनियम का प्लेटर्स मतलब प्लेट रखा हुआ है, और उसमें बहुत सारे और सब्जी है. चॉप्ड कटा हुआ, चॉप्ड CHOPPED कटा हुआ वेजिटेबल्स रखा है. दीज ऑल आर हिज डिस्क्रिप्शन. तो हम तुम लोग को एक्सप्लेन करें ताकि तुम इंग्लिश वर्ड सीखो, और एल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. जस्ट हैव अ ग्लिम्स कि मुकेश का परिवार कैसा इकोनॉमिक कंडीशन से था, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा था. A frail young woman, frail FRAIL, weak. Just underline and write there. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiled. तो obviously they won't be having exhaust fans. जैसे हम लोग के घर में जनरली होता है, ये बहुत घर में भी नहीं होता है. एग्जॉस्ट फैंस क्यों नहीं है? बिकॉज जस्ट लुक एट द वे दे आर लिविंग. ऑब्वियसली दे विल नॉट हैव एन एग्जॉस्ट फैन इन देयर हाउस. तो यहाँ पर वो स्मोक उड़ रहा है क्योंकि लकड़ी से खाना बन रहा है, जल रहा है लकड़ी, एंड देन उस पे ऊपर सामान रखा है. सो द स्मोक इज देयर एंड शी इज स्माइलिंग. शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर. सो ये जो फ्रेल यंग वुमन है, एक वीक यंग लड़की है, एक औरत है, ये कौन है? मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है. मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ. ऑलराइट. Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu. Obviously, because she is Mukesh's elder brother's wife, so she is the daughter-in-law of the house. इसलिए हिंदी में वहाँ word लिखा है bahu, and then after that it's written the daughter-in-law of the house. Already in charge of 3 men. 3 men कौन होंगे? Obviously मुकेश होगा एक, उसके बड़े भैया जिसकी वाइफ थी ये होंगे एक, and their father. So Mukesh, his elder brother, and both of their father, which is one father. तो वहां पर ये तीनों men की obviously ये responsibility उठा रही, because food and everything she is doing the work at the place. Now underline the following lines. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. So you can understand जो typical Indian culture है, where if the father-in-law comes in, the daughter-in-law जो बहू है वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, so वो घूंघट से अपना चेहरा छुपाती है. Same thing is happening here. जाके टूटे हुए दीवार के पीछे she just covers her face with the veil. Veil as in VEIL मतलब घूंघट. Alright, with the veil. As she is not supposed to show her face to the male elders. Alright. In this case, the elder. अब यहाँ पर author क्या बोलना चाह रही है? Just let me read, और फिर तुम लोग खुद बताना कि author बोलना क्या चाह रही है. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he had failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of bangle making bangles. क्या बोल रही है यहाँ पर? Please understand, यहाँ पर author sarcastic हो रही है. Sarcastic मतलब यहाँ पर author ताना मार रही है
कि जो बहू अपने फादर इन लॉ के सामने मुंह छुपा रही है और इज्जत दे रही है और ढक रही है चेहरा और वहां से हट जा रही है, इस केस में वो फादर इन लॉ, वो जो एल्डर है, वो जो वहां पर मैन है, वो कौन है? वो इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। इम्पोवरिश्ड मीन्स पुअर, अ पर्सन जिसके पास हर चीज का कमी हो, एक गरीब इंसान जिसके पास कोई हर चीज की कमी हो, वो होता है इम्पोवरिश्ड। तो एक ऐसा इंसान है जो गरीबी में है, जिसके पास हर चीज का कमी है, और वो एक बैंगल मेकर है। इतने साल से वो अभी तक अपना घर तक नहीं बना पाया, अपना दोनों बेटा को स्कूल तक नहीं भेज पाया पढ़ाने के लिए, लेकिन एक चीज जरूर कर पाया है, और वो क्या कर पाया है कि उन लोगों को कला सिखाया है, बैंगल मेकिंग का कला। सो दिस इज वेरी आयरॉनिक। आयरॉनिक मतलब बहुत उल्टा साउंड कर रहा है, बहुत ताना देने वाला साउंड कर रहा है, क्योंकि अगर एक इंसान अपना घर नहीं बना सकता है, अगर एक इंसान अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज सकता है, क्यों? इसलिए नहीं कि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है या उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो इसीलिए ऐसा कर रहा है बिकॉज जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये लोग सारे लोग बैंगल मेकिंग में ही इन्वॉल्व थे। तो इस एल्डर के लिए, मुकेश के पापा के लिए बैंगल मेकिंग करना ज्यादा जरूरी था, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करना ज्यादा जरूरी था दैन जस्ट इम्प्रूविंग हिज हाउस और सेंडिंग देयर सन्स टू स्कूल। उस मुकेश के पापा के नजर में क्या इंपॉर्टेंट था यहाँ पर? उसके पापा के नजर में वो लोग जैसे परिवार का जो ट्रेडिशन चला रहा है वो इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो अपने दोनों बेटे को सिर्फ एक चीज सिखा पाए, वो है आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जो यहाँ पर ऑथर ताना मार रही है, सरकास्टिक हो रही है ऑब्वियसली। ऑलराइट, सो टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड clearly? It is his, so let us proceed to the next paragraph. It is his karam, his destiny, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Just let me read and then I'll explain. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Spiral of bangles. Sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in molds in unkept yards and piled on 4-wheeled handcarts pushed by the young men along the narrow lanes of the shanty town. Okay, so let us just see the first part, जो क्या बोल रही ऑथर। यहाँ पर मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो क्या बोल रही है कि ये कर्म है, कर्म एज इन ये कर्म, ये काम है, ये डेस्टिनी है, दिस इज वॉट वी आर डूइंग, ये हम लोग करते आ रहे हैं इस जमाने से, तो यही हम लोग की किस्मत में लिखा हुआ है। जस्ट लाइक ओल्ड पीपल से दिस, शी सेइंग। एंड वाई शी सेइंग? क्योंकि वो अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखी है, अपने हस्बैंड को नॉर्मल काम करने के टाइम से लेके अंधे होते तक देखी, जब वो उस अंधेरे में कॉन्सेंट्रेटेड रोशनी में काम करते गए एंड अपना आईसाइट कंप्लीटली खो दिए। शी इज सेइंग कि कोई एक भगवान का दिया हुआ गॉड गिवन लीनिएज अगेन जो परंपरा चले आ रहा है उसको तोड़ सकता है? शी इज सेइंग क्या एक गॉड गिवन लीनिएज तोड़ा जा सकता है? भगवान का दिया हुआ एक परंपरा तोड़ा जा सकता है? शी इज सेइंग एज इन शी इज आस्किंग एज वेल एज आंसरिंग द क्वेश्चन कि नहीं, ये नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि स्पेशली ओल्ड पीपल जो होते हैं वो ये सब चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangle. So now understand, साहिब का कास्ट नहीं बोल सकती हूँ, पर साहिब किस चीज को बिलोंग करता था? रैक पिकर्स। मुकेश किन लोगों को बिलोंग करता है? बैंगल मेकर्स। तो मुकेश जब बैंगल मेकर्स कास्ट वाले लोग को बिलोंग कर रहा है, तो वो बचपन से लेकर अभी तक कुछ नहीं देखा है सिवाय बैंगल्स। और यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कि स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स जो एक दूसरे में लिपटा हुआ है, एंड सनी गोल्ड कलर का है, ग्रीन पैडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, जितना कलर ले आओ वो सारे कलर का बैंगल्स कभी तुमको यार्ड पे, कभी बालकनी में, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी इस घर में, यू ओनली सी बैंगल्स बिकॉज ये लोग बैंगल मेकर्स शुरुआत से चले आ रहे हैं।
Okay, so then what is the line? Just see here. So हर जगह, हर कोने में, हर गली में, हर किनारे, हर जगह ये बैंगल्स रखा हुआ है. And in dark hutments next to the lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into the circles of bangles. So ये इतना important tradition है, ये इतना जरूरी ट्रेडिशन चला आ रहा है मुकेश और उसके परिवार के लिए और भी बहुत सारे परिवार के लिए कि पूरा परिवार, द एंटायर फैमिली यूज्ड टू सिट टुगेदर. जैसे फॉर एग्जांपल सब एक साथ बैठ के कोई टीवी शो देखता है, कोई मूवी देखता है, यहाँ पर पूरा परिवार एक साथ बैठता है. वाई? टू मेक बैंगल्स. उसकी बेटी कुछ कर रही है, उसके पापा कुछ कर रहे हैं, उसकी मम्मी कुछ कर रही है, दे ऑल मेकिंग बैंगल्स. ऑलराइट. Their eyes are more adjusted to dark rather than to light outside. Again, what I'm saying कि क्योंकि वो लोग इतना अंधेरा में रहते आए हैं और लाइट का कुछ कुछ ही पार्ट मिलते आया है, that their eyes are more adjusted to dark. मतलब वो लोग को अंधेरे में ज्यादा अच्छा लगता है as compared to रोशनी में. This is why they often end up losing their eyesight before becoming adults. So that is what is one of the main concerns. क्यों? क्योंकि मुकेश और उसका परिवार जैसा जो लोग हैं जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहा है, वो लोग इस चीज को इतना सीरियसली लेते हैं बिकॉज ये फैमिली ट्रेडिशन है. बट इंस्टेड व्हाट इज हैपनिंग, वो लोग, ये डर है कि वो लोग अपना आईसाइट खो देते हैं जब तक वो लोग बड़े होते हैं, विच इज अगेन अ मोर सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज आई थिंक दैट अपना आईसाइट खो देना, देन वो ट्रेडिशन का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा. All right, okay. So in the next class, again an important question. Questions are coming up. We'll discuss about another character, Savita. जो कौन है, क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आता है. Till here we understood that मुकेश एक ऐसे घर में रहता है जहाँ ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है. उसका परिवार एक बैंगल मेकिंग ट्रेडिशन और कास्ट को बिलोंग करता है. एंड बट मुकेश हियर ही इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड. उसको मोटर मैकेनिक बनना है, उसको गाड़ी चलाना है एक दिन. बट अंडर द फैमिली प्रेशर वो अभी भी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है. ऑलराइट. एंड वी ऑल्सो सी दैट वी ऑल्सो सॉ दैट मुकेश के पापा रहते हैं जो एल्डर तो है, बहुत इज्जत मिलता है उनको, पर सच्चाई ये है कि वो अपने दो बेटे को न पढ़ाए लिखाए न अपना घर बनाए, लेकिन एक चीज सिखाए, वो है आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. क्योंकि यहाँ इन जैसे लोग के लिए इन लोग का आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट था, बहुत ट्रेडिशन फॉलो करना इंपॉर्टेंट था. ठीक है, वो we'll discuss this part in the next class. All right, so please read the chapter, understand, and if you have any doubt, as I have said in the beginning of the video, you can just ask me. All right, okay, so please read the chapter till we meet again. All right, thank you.